नमस्कार, मैं अंकिता। आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services. Capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. सिलीगुड़ी नगर निगम में बोर्ड मीटिंग आयोजित। सिलीगुड़ी नगर निगम के बोर्ड मीटिंग में पेयजल की समस्या, कूड़ा निस्तारण और कूड़ेदान की संख्या बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर विशेष तौर पर चर्चा की गई। इस दिन विपक्ष के नेता अमित जैन समेत सीपीआईएम पार्षदों ने विभिन्न मुद्दों पर प्रस्ताव लाए और विभिन्न मुद्दों पर सवाल उठाए गए। इनमें वार्ड के पेयजल की समस्या, कूड़ा निस्तारण और कूड़ेदान की संख्या बढ़ाने पर चर्चा की गई और प्रस्ताव लाए गए। इसके अलावा विपक्ष ने अवैध निर्माण को लेकर भी सवाल उठाए। मेयर और मेयर परिषद सदस्यों ने विपक्ष को बताया कि उन सभी मुद्दों पर क्या कदम उठाए गए हैं। आज के जो रेजुलेशन प्लेस करा हलो से आज के बांग्लार नारीদের अपमानित করা হচ্ছে, যেখানে বাংলার অত নারী নির্যাতন হচ্ছে। এই দুর্নীতিবাজ বোর্ড চলেছে মণিপুর, যেখানে সাধারণ মানুষকে জল দিতে পারছে না এই বোর্ড, সেই বোর্ড যেখানে রাস্তা দিতে পারছে না, এরা কথা বলছে মণিপুরে। এইখানে দুই পাখি সিপিএম আর তৃণমূল, যারা টিম ইন্ডিয়ার নাম করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। কি টিম ইন্ডিয়া? এরা সব দুর্নীতিবাজ দল এখানে ইস্যুগুলোকে ডাইভার্ট করার জন্য এই আলতু ফালতু এইখানে রেজুলেশন আনে, এই বোর্ডের টাইম নষ্ট করছে। কি রেজুলেশন নিয়ে এসেছে? এরা মণিপুর নিয়ে একটা রেজুলেশন নিয়ে আসছে। এরা কথা বলছে নাকি বিজেপি সরকার ওখানে চলছে বলে এই ঘটনা ঘটছে, কিন্তু এইখানে যে লোকাল ইস্যু, এখানে দিন পর দিন মালদা, কুচবিহার, বাগডোগরা যেখানে বারবার নারী নির্যাতন হচ্ছে, এই বোর্ড আসার পরে শিলিগুড়িতে প্রত্যেক ক্রিমিনালদের আশ্রয় এরা দিচ্ছে। প্রত্যেক ক্রিমিনাল শিলিগুড়িতে আশ্রয় করে প্রত্যেক মানুষকে হ্যারাস করছে, সেইগুলো বিষয় দেখছে না। কিন্তু সাধারণভাবে যে সাধারণ মানুষের কথা যে পুরো বোর্ড মাসে একবার হয়, সেই বিষয় বাদ দিয়ে সমস্ত জিনিসকে ডাইভার্ট করার একটা চেষ্টা করা হচ্ছে। डेंगू से निजात पाने के लिए आम नागरिकों को भी रहना होगा जागरूक। सिलीगुड़ी में भी डेंगू से निजात पाने के लिए सिर्फ जनप्रतिनिधियों और समाचार माध्यमों से ही नहीं, बल्कि आम लोगों को भी जागरूक और सक्रिय होने की जरूरत है। वृक्षारोपण एवं नेत्र परीक्षण शिविर में पहुंचकर बोरो चेयरमैन लायंस जयंत शाह ने ऐसा कहा। लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी और 25 नंबर बोरो कमेटी के आज वृक्षारोपण के अलावा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज डेंगू के बारे में जयंत शाह ने कहा, जिले के निवासियों को भी डेंगू के लिए सभी स्थानों को साफ रखने की जरूरत है। চোখের একটি রোগের এখন ভাইরাস একটা এসেছে এবং এতে চোখ লাল হয়ে যাচ্ছে। তার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে এই স্কুলে পাঠরত সমস্ত শিশুদের চোখ পরীক্ষা এবং দাঁত পরীক্ষার জন্য আজকে লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ির পক্ষ থেকে এখানে সম্পূর্ণ নিখরচায় তাদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই সাথে তাদের প্রয়োজনীয় ওষুধ আমরা এখানে নিখরচায় দেব এবং যদি কারুর যদি পাওয়ার লাগে সেই চশমাও আমরা এখান থেকে সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় আজকে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য দেব। এছাড়াও অভিভাবক, অভিভাবিকা এবং এই এলাকায় বসবাসকারী যে সকল নাগরিক আছে তাদেরকেও আমরা চোখের পরীক্ষা এবং দাঁত পরীক্ষার জন্য এখানে আসার অনুরোধ জানিয়েছি। তারাও এসেছেন, তাদেরও পরীক্ষা করা হবে এবং এই পরীক্ষা শিবিরে যদি কেউ ছানি অপারেশনের জন্য চিহ্নিত হয় তাদেরকে সম্পূর্ণ নিখরচায় শিলিগুড়ি লায়ন্স নেত্রালয়ে অপারেশনের সুব্যবস্থা করা হবে। सिलीगुड़ी में सीपीआईएम माटीगड़ा एरिया कमेटी ने कुल 8 सूत्री मांगों को लेकर 18 ग्राम पंचायत को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें शिव मंदिर में सड़कों की खराब स्थिति और पंचायत फंड सीपीआईएम माटीगड़ा एरिया कमेटी ने केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन, खराब सड़कों, कर संग्रह में गड़बड़ी, 100 दिन के बकाया कार्य के भुगतान और ठोस कचरा प्रबंध की मांग को लेकर 18 ग्राम पंचायत प्रमुख यूथिया रॉय को एक ज्ञापन सौंपा। इस दिन सीपीआईएम एरिया कमेटी ने सचिव असीम चौधरी, असित नंदी समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। হ্যাঁ, আমরা আমাদের 18 খাই এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে সিপিআইএম পার্টির মাটিগাড়া এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে আমরা একটা ডেপুটেশন দিয়েছি। সেই ডেপুটেশনের মূল দাবিগুলো ছিল যে আমরা লক্ষ্য করেছি যে আমাদের যে গ্রাম সংসদ এলাকা, গোটা পঞ্চায়েত এলাকার যে মেজর রোডগুলো রয়েছে, যেখানে প্রচুর মানুষ প্রতিদিন যাতায়াত করেন, সেই রাস্তাগুলো অত্যন্ত বেহাল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই ব্যাপারে পঞ্চায়েতে রেগুলার বেসিসে যে ফান্ড আসে সেই ফান্ড কিভাবে ব্যবহার হচ্ছে,
তার সঙ্গে স্বচ্ছতা আছে কিনা এই প্রশ্নগুলো আমাদের ছিল, কারণ পরিষেবা মানুষ পাচ্ছেন না। नशा मुक्त अभियान के तहत सिलीगुड़ी में 5 नशेड़ी गिरफ्तार। माटीगड़ा थाने की पुलिस ने सिलीगुड़ी के माटीगड़ा के विश्वास कॉलोनी इलाके में नशे की हालत में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस की ओर से लगातार इलाके में छापेमारी की जा रही है। आज सुबह माटीगड़ा थाने की पुलिस ने इलाके में दोबारा छापेमारी कर नशे की हालत में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में बापी दास, दीपक बर्मन, बादल रांदा, मोहम्मद सुलेमान हक और शरद सरकार शामिल है। गिरफ्तार लोगों को सिलीगुड़ी महकमा अदालत में भेज दिया गया है। पुलिस इस दौरान इलाके में 24 घंटे निगरानी रख रही है। एसजेडीए मार्केट के पास से प्रतिबंधित कप सिरप के साथ 2 युवक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में प्रतिबंधित कप सिरप के साथ एसओजी और प्रधाननगर थाना पुलिस की सफेद पोशाक पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर 2 युवकों को गिरफ्तार किया। दोनों युवक के नाम शिलाजीत दत्ता और पलाश महतो है। दोनों ही प्रधाननगर थाना अंतर्गत इलाके के निवासी बताए गए हैं। जानकारी मिली है कि आज दोपहर के समय शिलाजीत दत्ता अपनी स्कूटी की डिक्की में प्रतिबंधित कप सिरप छिपाकर जंक्शन एसजेडीए मार्केट संलग्न एनबीएसटीसी बस स्टैंड के 2 नंबर गेट के पास बिक्री करने पहुंचे थे, लेकिन इसकी खबर मिलते ही एसओजी और प्रधाननगर थाना की सफेद पोशाक पुलिस ने अभियान चलाकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कल दोनों आरोपी को सिलीगुड़ी अदालत में पेश करेंगी। वाहनों में पेट्रोल की जगह डाला जा रहा है पानी। सिलीगुड़ी जंक्शन के पास कल रात एक पेट्रोल पंप पर कई लोगों ने पेट्रोल भरवाने गए थे। आरोप है कि उनसे कहा गया कि रेगुलर पेट्रोल नहीं है, उन्हें स्पीड पेट्रोल लेना होगा। कई लोगों ने जल्दबाजी के कारण स्पीड पेट्रोल ले लिया। इसके बाद उनकी कार थोड़ी दूर जाकर बंद हो गई। इसके बाद कई ग्राहकों ने पेट्रोल पंप पर जाकर विरोध जताया। इस संबंध में जंक्शन पेट्रोल पंप अथॉरिटी ने बताया कि अब पेट्रोल में इथेनॉल भी आता है, जहां पानी में एक बूंद गिरने पर पूरा पेट्रोल पानी में बदल जाता है। इस पंप से पेट्रोल लेने वाले लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नागालैंड सरकार टियर 200 बाय मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 ग्यारंटीड। टिकट मूल्य 200 रुपियाँ। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ।
अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। बाहरी राज्य में मजदूरी करने के दौरान मालदा की एक महिला मजदूर की मौत। मृत महिला का नाम ममता चौधरी है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार वह करीब 2 माह पहले गुजरात में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूर के रूप में काम करने गई थी। हालांकि पहले 1 महीने तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। ममता को गुजरात के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान मंगलवार को महिला की मौत हो गई। आज सुबह सब घर पहुंचते ही परिजन रो रो कर बेहाल हो गए। यह भी पता चला है कि यह महिला परिवार में अकेले कमाने वाली थी। परिवार के लोग अब सरकार और निजी मदद की गुहार लगा रहे हैं। ওখানে মানে গরিব পরিবারের মানে মেয়ে ছেলে মানে কাজ করে পরিবার চালাতো। মানে সব দিনই প্রায় বাইরেই খাতেন। বাড়িতে বৃদ্ধ একটা শ্বশুর আছেন, ছোট ছোট বাচ্চা আছে এবং একটা বাচ্চাকে নিয়েও গিয়েছিলেন কাজ করতে যেয়ে ওখানে হঠাৎ বমি এবং পায়খানা মানে ডায়রিয়া হয়ে যায়। হঠাৎ ওখানে মারা যান। ওখানে 3 দিন আগে মারা গেছিলেন। আজকে এখানে নিজের বাড়িতে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসা হলো বডিটা। ईंटों से लदा एक 14 पहिया लॉरी सड़क किनारे पलटा, ड्राइवर घायल। सिलीगुड़ी के खोरीबारी इलाके में ईंटों से लदा एक 14 पहिया लॉरी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। घटना में ड्राइवर घायल हो गया। बताया जाता है कि ईंटों से भरी 14 पहिया लॉरी सिलीगुड़ी की ओर जा रही थी, तभी अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। यह देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। उधर इस दुर्घटना में कारण खोरीबारी घोसपुकुर यातायात रोक दिया गया। हालांकि पुलिस की कार्रवाई से यातायात सामान्य हो गई। मुहर्रम के दिन को हथियार प्रदर्शन नहीं बल्कि सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से मनाने का प्रोफेसर नासिर अहमद ने किया अनुरोध। ऑल इंडिया माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन प्रोफेसर नासिर अहमद ने पवित्र मुहर्रम त्योहार के दौरान डीजे वाले जुलूस और हथियारों के प्रदर्शन से परहेज करने का संदेश दिया। इसके बजाय उन्होंने मुहर्रम के विशेष दिन को सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से मनाने का अनुरोध किया है। सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन में प्रोफेसर नासिर अहमद ने कहा कि मुहर्रम के विशेष दिन को रक्तदान, वस्त्रदान, स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता कार्यक्रमों के साथ मनाया जाना चाहिए। অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অর্গানাইজেশন আজকে বিশেষ কয়েকটি বার্তা দেওয়ার জন্য আপনাদের আমরা অনুরোধ করেছি। সেটি হলো, আমরা কিছুদিন যাবত থেকে দেখতে পাচ্ছি যে মুহররমের দিন ডিজে বাজিয়ে বিভিন্ন শোভাযাত্রা করা হচ্ছে, অস্ত্র খেলা হচ্ছে। এতে আমাদের যে ভারতীয় পরিবেশের তাগিদে আমরা আপামর জনসাধারণকে যে বা যারা মুহররমের সাথে যুক্ত তাদেরকে অনুরোধ করব তারা যেন ডিজে না বাজায় এবং অস্ত্র প্রদর্শনের পরিবর্তে তারা সেই বিশেষ দিনটিতে হুসেনের যে জীবন কাহিনী সেটির উপর যেন আলোকপাত করে, দোয়া খায়ের করে, ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করে, গরিবদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করে। কারণ এটা আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি, সর্বধর্মের সমন্বয়ে আমাদের এই দেশ, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফল। আপনারা জানেন যে কারবালা সেটা ইরাকে অবস্থিত। সেই সময় হুসেন একটা অ্যামিকেবল সেটেলমেন্ট, প্রোগ্রেসের জন্য নিজের জীবনকে আত্মত্যাগ করেছিলেন, বলিদান করেছিলেন। সেই দিনটিকে পালন করার জন্য আজকে এই মুহররম অনুষ্ঠানটি করা হয়। কিন্তু সেই পরিস্থিতি আর বর্তমান ভারতীয় পরিস্থিতি দুটো আলাদা। আমরা দেশকে ভালোবাসি, দেশের সংস্কৃতিকে ভালোবাসি। আমরা আমাদের অনুষ্ঠান করে যেন কাউকে আমরা আঘাত না করি, সেই দিকে আমাদের পুরোপুরি নজর রাখতে হবে। তাই আমরা অনুরোধ করছি আস্তে আস্তে এই অনুষ্ঠানটি দোয়া খায়রের মাধ্যমে হোক। सेंट्रल बैंक के सामने से एक व्यक्ति से बाइक सवारों ने लूटे 4 लाख रुपए। दिन दहाड़े बैंक के सामने से एक व्यक्ति के 4 लाख रुपए लूट लिए जाने की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना उत्तर दिनाजपुर जिले के चाकुलिया थाना क्षेत्र के कालीबाड़ी इलाके में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सामने स्टेट हाईवे पर हुई। दिलीप कुमार मंडल नामक एक सेवानिवृत्त शिक्षक नौकरी के लिए अपने पीएफ में जमा किए गए 4 लाख रुपए निकालने के बाद बैंक से निकल रहे थे। तभी तेज रफ्तार बाइक पर सवार लुटेरों ने उनसे पैसे वाला बैग छीनकर भाग गए। सूचना पाकर चाकुलिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है।
আমি ব্যাংক থেকে টাকা তুললাম, রাস্তা ক্রস করলাম, ওদিক থেকে দুটো ছেলে কালো রঙের মোটরসাইকেল নিয়ে এসে ফুল স্পিডে আসছে। তো আমি আরও বললাম, আরে ভাই কি তুই পাগল হয়ে গেছিস নাকি? আমি লোকটা যাচ্ছি ওদিকে, কিছু না, এইভাবে আসতে আসতে আমি ব্যাগটা এখানে ঢোকানো ছিল হাতে, ছিনতাই করে নিয়ে পালিয়ে গেল ব্যাগটা। হ্যাঁ টাকা ছিল, টাকা কত টাকা? 4 লাখ ছিল। হ্যাঁ পিএফের টাকাগুলো তুললাম যে এটা কিছু করবো, একটা ফুল স্পিডে বেরিয়ে গেল। কি বলবেন, এই যে ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নিয়ে যাচ্ছে, নিরাপত্তা কীভাবে যাচ্ছে? কোনো নিরাপত্তা পাচ্ছি না, কিচ্ছু না। এখানে তো শুধু আজকে না, এর আগেও বহুবার হয়েছে, অনেকবার হয়েছে ছিনতাই, রেগুলার হচ্ছে এখানে। এখানে কি কোনো পুলিশ গার্ড ছিল না? না, কিচ্ছু ছিল না, কোনো গার্ড নাই, কিচ্ছু নেই, ফাঁকা। হ্যাঁ আমি রিটায়ার করেছি। करबाला मोहर्रम कमेटी ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। सिलीगुड़ी शहर में रक्त संकट को दूर करने के लिए इस्लाम धर्म से जुड़े लोग आगे आए। सिलीगुड़ी के करबाला मोहर्रम कमेटी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज दोपहर करबाला मैदान में रक्तदान शिविर शुरू हुआ। रक्तदान शिविरों में काफी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। उल्लेखनीय है कि लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी डिग्निटी ने इस रक्तदान शिविर में सहयोग का हाथ बढ़ाया है। शिविर में एकत्रित रक्त को सिलीगुड़ी के तराई लायंस ब्लड बैंक में भेजा जाएगा। अलीपुरद्वार जिला अस्पताल में आया और मासियों की बहाली की मांग को लेकर राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिया ज्ञापन। अलीपुरद्वार जिला अस्पताल में आया और मासियों की बहाली की मांग को लेकर राष्ट्रीय कांग्रेस ने अलीपुरद्वार जिला अस्पताल में विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया और जिला अस्पताल अधीक्षक को ज्ञापन प्रदान किया। राष्ट्रीय कांग्रेस जिला कार्यकारी अध्यक्ष शांतनु देवनाथ ने कहा कि कुछ महीने पहले आया और मासियों को गलत तरीके से अस्पताल से निकाल दिया गया था। अब वे बहुत परेशान में हैं क्योंकि उनकी नौकरी चली गई है। हमारी मांग है कि आया और मासियों को फिर से नौकरी बहाल की जाए। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।